Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today we'll be starting the fourth chapter of your macroeconomics book, Money. So this is from the unit Money and Banking. This is one of the very easy chapter of your book. At the same time, it is purely theory based. So you just have to mug up things and you can only do that by understanding the concepts. So yeah, without wasting time, let's begin. So before understanding the meaning of money, I would rather like to start with barter system. So basically, when money wasn't invented, the barter system was one and the only way through which we can exchange goods and we can actually perform all the economical activity. So what does the barter system stands for? So it is exchange of goods for goods. A very easy and very simple definition, but it is very complicated in a practical life. It is also known as C2C economy or barter economy. C2C stands for consumer to consumer economy. So basically barter system एक ऐसा system हुआ करता था जहाँ पर there are two consumers who are playing the role of buyer and seller at the same time, and one of them, like, both of them are selling goods to each other. Okay, so barter system was, as I've told you, this is one of the very complicated process because it can only be possible if there is double coincidence of want. Now what do we mean by double coincidence of want? So the definition is simultaneous fulfillment of mutual wants of buyer and seller. What does this mean? That in this setup, a person is playing the role of a buyer and a seller at the same time, and the deal can only be possible if both of the individuals are satisfied. Say for example, one man has to sell the wheat production, at the same time he wants to buy some good clothes. Okay, so first of all he has to find out that who is the one who is ready to sell the clothes, at the same time who is the one who would sell the clothes, at the same time will purchase the थिंग्स आई वांट टू सेल. सो यहाँ पर क्या होता है कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट होनी चाहिए. अगर दोनों खुश हैं तभी वो सेल पॉसिबल हो पाएगी. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता था, और वहाँ पर जब कोई कॉमन मेजर नहीं होता था मनी के, मतलब मनी जैसा, तो उस टाइम पे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था. एट द सेम टाइम बार्टर सिस्टम लीड्स टू वेरी हाई ट्रेडिंग कॉस्ट. इससे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट भी बढ़ती थी, क्योंकि आपको एक इकोनॉमी में फाइंड करना कि कौन मेरे गुड्स को लेने को तैयार है, एट द सेम टाइम कौन ऐसा इंसान है जो ऐसे गुड्स बेच रहा है जो मुझे भी चाहिए. सो बोथ द फुलफिल, लाइक फ्रॉम बोथ द पार्टीज देयर हैज़ टू हैव द सेटिस्फैक्शन, राइट. तो दोनों ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इससे ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. Hence, in barter system, it was very difficult to fulfill the wants of all the individual who are included into the procedure of trading. So not only double coincidence of want, there are so many limitations barter system had, due to which there was an acute need of inventing some or the other medium through which transactions or exchange of goods could be possible way easier. Okay, so before discussing about money, let us discuss about some of the very prominent disadvantages of barter system. So first was lack of double coincidence of wants. So I've already told you that there has to have the simultaneous fulfillment of the wants of both the parties involved into the trade, right. The second point is lack of common measures of value. So in barter system it was very difficult to set up an exchange ratio. अब exchange ratio का क्या मतलब होता है? Basically exchange ratio refers to, मतलब मैं कितना अपना good बेचूं जिससे कि मुझे सामने वाले का good मिलेगा. Say for example, I have wheat and I want to get some clothes. So suppose he wants to sell 4 shirts and 4 pants, right. So how much amount or how much quantity of wheat I should sell to them, ठीक है. तो उसके लिए जो exchange ratio होता था वो decide करना बहुत बहुत difficult होता था. और फिर रैंडमली ट्रेड हुआ करते थे. सो दिस वाज वन एंड द वेरी बेसिक कंफ्यूजन इन बार्टर सिस्टम. द थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. So deferred payment is nothing but a transaction or a contract which involves फ्यूचर पेमेंट्स. ठीक है, मतलब जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं जहाँ पर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पे कर देंगे, वो कहलाता है डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम में हम कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम इतने टाइम में आपको जो है गुड्स दे देंगे. मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो हमने फुलफिल कर ली, बट जो सामने वाला मांग रहा है, वी आर लाइक वी हैव गॉट अग्रीड टू गिव देम दैट, बट वी हैव प्रॉमिस्ड टू गिव देम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. तो क्योंकि बार्टर सिस्टम में केवल हम गुड्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो पॉसिबली ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस जो भी हमारे पास गुड है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाए, या उसकी क्वांटिटी में अंतर आ जाए, या फिर मतलब कुछ भी तरीके से उसमें चेंज आ सकता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं. तो डेफर्ड पेमेंट भी जो है बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यू कैन नॉट गारंटी ऑफ द गुड्स यू हैव फॉर एवरी टाइम, लाइक राइट. देयर आर सर्टेन
पैटर्न ऑफ कॉन्टिजेंसी विच कैन अराइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम उसकी कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं थे। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ आउट देयर। ठीक है, अभी आज मेरे पास 40 रुपीज़ है, अब आई बी एंड आई हैव केप्ट इट इनटू अ बैग। ठीक है, अब एन ईयर लाइक अ ईयर लेटर ऑल्सो द 40 रुपीज़ विल रिमेन द सेम। ठीक है, उनकी वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी लाइक सिंस मनी हैज़ अराइव्ड वी हैव द फैसिलिटी कि वी कैन स्टोर आवर वेल्थ। बट अर्लियर जब हम गुड्स में डील करते थे, तो क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के भी होते हैं, नॉन पेरिशेबल नेचर के भी होते हैं, तो एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद हम उसको सेम हालत में स्टोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या कुछ भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज आ सकता है उसमें। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू, हम हमारे गुड्स की वैल्यू जिसके कारण हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं उसको भी हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। सो या दीज वर सम बेसिक प्रॉब्लम्स विद बार्टर सिस्टम, इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। तो बेसिकली मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। मतलब आप किसी रिच को आप 40 रुपये दो या किसी पुअर को दो या किसी दूसरे स्टेट में जाके दो, या फिर इवन यू हैव टू डू सम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सो आफ्टर चेंजिंग द करेंसी यू कैन डू दैट। तो मनी क्या है? ये एक जनरली एक्सेप्टेड चीज़ है और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब आपको गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए आपको मनी ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि वही मीडियम है, इकोनॉमी को चलाने का मीडियम ही वही मनी है। ठीक है, उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब जब से मनी आया है सो एवरीथिंग हैज़ गॉट सम अदर वैल्यू एंड वी कैन एक्चुअली calculate its price and accordingly we can make the purchases. उसके बाद and means of standards of deferred payment, और since money has invented deferred payments and credit transactions and some promisable transactions are now possible. ठीक है, money has overcome all the drawbacks of barter system. ठीक है, मनी barter system के बाद मनी ही है जो इन्वेंट हुआ और अभी तक हम मनी का ही यूज़ कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि barter system के सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर लेता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट सो मेनी गुड एडवांटेजेस एट द सेम टाइम। Now let us talk about some functions of money which it prevails. So functions को हमने दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। कुछ प्राइमरी मनी के फंक्शंस ये होते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन में आता है ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है और स्टोर ऑफ वैल्यू है। सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी में आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं लिख सकते हो, इट विल गो रॉन्ग। यू जस्ट हैव टू राइट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स ऑफ वैल्यू। नाउ वन बाय वन विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ देम। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। तो मीनिंग ऑफ एक्सचेंज मतलब कि हर मतलब किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, सर्विसेज को खरीदने के लिए आपको मनी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मीडियम बन चुका है इकोनॉमी का, और हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेजर्स ऑफ वैल्यू मतलब सिंस द मनी हैज़ इन्वेंटेड एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स वैल्यू एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट दैट कितना हमको क्या खरीदना है और कितनी क्वांटिटी में कितने प्राइस में हमको खरीदना है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब इसकी मदद से अब जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गए हैं। नाउ वी कैन डील दैट अगर मैं 5 दिन बाद आपको ये गुड्स देती हूँ तो क्या होगा कि आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 5 दिन बाद इस गुड्स का पैसा दूंगी तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये डेफर्ड पेमेंट कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि हमारे पास मनी है। उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि अब हम जो है हर चीज़ की वैल्यू जो है वो अब फिक्स्ड हो चुकी है एंड यू कैन जस्ट स्टोर दी वैल्यू आउट देयर एंड इट वॉन्ट चेंज। तो इसमें आप वही 40 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। अब अपन जो है अगला कॉन्सेप्ट और द लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे, मनी सप्लाई। सो व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? अभी हमने मनी देख लिया, उसके फंक्शंस देख लिए, अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई क्या होता है। तो किसी भी नेशन में हमें ये जब कैलकुलेट करना होता है कि जितने भी पब्लिक है या फिर जितना भी हमारे नेशनल सिटीजन्स हैं उनके पास कितना पैसा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये मनी सप्लाई की मेथड को यूज़ करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी लोग हैं उनके पास कितना पैसा है उसको उस वैल्यू को निकालने के लिए हम मनी सप्लाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नो गवर्नमेंट, नो एनी फॉरेन इंस्टीट्यूट and no any financial institute will be included. They'll be like all the money which belongs to public will
बी काउंटेड। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मनी या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट का मनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मनी इंक्लूड नहीं होगा, पर एक कंट्री के जितने भी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर नहीं पब्लिक है, उसके पैसे, उनका जो टोटल मनी वैल्यू है वो मनी सप्लाई से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी दूसरा पॉइंट जो देखने लायक है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकालते हैं, मतलब कि हम एक पूरे साल का नहीं निकालते हैं, बट एक एक पॉइंट का निकालते हैं। सो यू मस्ट हैव स्टडीड दिस थिंग इन नेशनल इनकम, और इफ यस, रीड द स्टेटमेंट अगेन, इससे आपको एक डेफिनेशन याद आएगी। हमने वहाँ पर कुछ मेजर्स की बात की थी और उनको कैलकुलेट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट थे, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट था, एक फ्लो कॉन्सेप्ट था। सो जो मनी सप्लाई है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आकर जो है पब्लिक के पास कितना मनी है वो निकालते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Now there are basically four tools available with us through which we can calculate money supply। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार मेजर्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज M1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, demand deposits with commercial bank and other deposits with RBI। So whatever currency, whatever coin is available with public, we can like get all the amount। सेकेंडली डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, और जितने भी डीडी जो होते हैं विच बिलोंग्स टू पब्लिक एंड दे हैव केप्ट इट इनटू सम कमर्शियल बैंक, वी कैन इंक्लूड दैट। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो ऐड ऑल द डिपॉजिट्स विच हैज बीन डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इनटू द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि जो पैसा हमारा कमर्शियल बैंक में अटका हुआ है, जो पैसा हमारा सेंट्रल बैंक में अटका हुआ है, और जितनी भी करेंसी कॉइन हमारे हाथ में अवेलेबल है, हाथ में मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग सब मिलाकर जितनी भी पब्लिक की करेंसी कॉइन एंड एवरीथिंग है, जब हम उनको ऐड कर लेते हैं तो उससे हमको M1 मिल जाता है, यानी कि मनी सप्लाई का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। सेकंड जो है वो आता है आपका M2 कॉन्सेप्ट। M2 कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मदद से हम मनी सप्लाई निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल M1। सो M1 में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि करेंसी कॉइन, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तो इंक्लूड होगा ही, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इंक्लूड होगा। मतलब कि यू माइट बी नोइंग कि जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर भी आप आपका मनी सेव कर सकते हो जाकर। ठीक है, तो वो सारी भी जितनी डिपॉजिट्स हैं वो अगर आप इंक्लूड कर दें तो वो M2 बन जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट M3, तो यहाँ पर आपको M1 को ऐड करना है, यानी कि ये तीनों चीज़ें, और नेट टाइम डिपॉजिट्स यानी जितनी भी आपकी एफडीज होती हैं बैंक में, उनको इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपको M3 मिल जाएगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट टूल इज M4, जिसमें आप M3 यानी M3 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, इनको लेकर प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, मतलब हमारी जितनी भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग में उनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा M4। तो मेरी डेफिनेशन से और आपको खुद भी एक ऑब्जर्वेशन से पता चला होगा कि M1 एंड M2 नैरो कॉन्सेप्ट था, मतलब इसमें कम एलिमेंट से हम मनी सप्लाई निकाल रहे होते थे, बट M3 एंड M4 थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, तो M1 जो है ये मोस्ट लिक्विड है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप आपके जितने भी चेक है या फिर प्लास्टिक मनी है, इन सब को आप नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब कितनी जल्दी आप अपने जितने भी काइंड ऑफ मनी है उसको मनी, एक्चुअल मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं अपन लिक्विडिटी, मनी विच इज़ देन बीइंग जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर M1 जो है, ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, आप सबसे जल्दी मनी इन तीनों एलिमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद M2, उसके बाद M3 एंड M4। सो या that was all about money supply, and with this topic the chapter also gets end. So yeah, I hope you've got everything. If you've got any doubt you can just ask me in the comment section, and if you like the video, hit on the like button and subscribe to my channel. Thank you.